All right. So on behalf of Astron Institute of International Studies, Gurgaon, I welcome you all on board for the webinar session on healthcare association and continuous quality improvement. As you are all aware that Astron Institute of International Studies is an academic vertical of our Astron group, which is focused on planning and designing of hospitals, quality and accreditation of healthcare services, as well as healthcare academics, with national as well as international certifications, diploma, bachelor and master degree programs. I take this opportunity to welcome Ms. Megha, who is our honored speaker for our session today. She is working as a microbiologist by profession in the Primus Super Specialty Hospital. She is a seasonal professional in healthcare infection prevention and also associate in this field for more than 10 years now. So over to you, Megha. So yes, I'm making you the host now, Megha, so you can take over. Thank you so much. So today the topic is hospital-acquired infection and continuous quality improvement, that is CQI, as per our hospital cost and as per our hospital quality. So we will start from introduction, planning for quality, understanding program related to hospital-acquired infection control, organizational design and hospital-acquired infection, fixing staff responsible for infection control, and for question. So let's start this hospital-acquired एक्वायर्ड इन्फेक्शन हम सबको पता है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज द इन्फेक्शन दैट इज एक्वायर्ड विद इन द हॉस्पिटल आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन. सो HAI को हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल फोकस ऑन CQI. CQI is continuous quality improvement. That is our ongoing process. ये ongoing process है जो क्वालिटी को, हॉस्पिटल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं फॉर बेटर वर्क, फॉर बेटर पेशेंट केयर, फॉर progress and for our accreditation also. And this continuous quality improvement planned as per some guidelines. That guidelines may be national, organizational, departmental or a specific program related to hospital acquired infection. ये किसी भी गाइडलाइन से रिलेटेड हो सकता है, बट द प्रिंसिपल शुड बी सेम. प्रिंसिपल हमारा सेम होगा कि हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है. गाइडलाइन हमारी कोई भी हो सकती है, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल या डिपार्टमेंटल या पर्टिकुलर किसी साइट को फोकस करके हम अपनी गाइडलाइन इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दैट इज द मेन टारगेट एंड मेन प्रिंसिपल ऑफ CQI, ऑर्गेनाइजेशनल एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. सो लेट्स स्टार्ट विद स्कोप. यहाँ हम एक मैं आपको पूरा प्रोग्राम बताऊंगी जो हम डिजाइन करते हैं फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. इसमें हम सबसे पहले स्कोप. व्हाट इज द स्कोप? स्कोप मीन्स द स्कोप of quality improvement program and evaluation should be outlined, which could be national, organizational, departmental or depending on the program related to HAI. ये मैंने आपको बता दिया. So this is the scope. Scope means हम किस पर वर्क कर रहे हैं. Then come to the internal audit. जब हमारा स्कोप क्लियर हो जाता है कि हम किस डिपार्टमेंट में या किस पर्टिकुलर साइट को फोकस करके हम अपना स्कोप बना रहे हैं, तो हम वहां पर एक इंटरनल ऑडिट प्लान. इट मींस इट इज अ इम्पॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश क्लियरली एज who will audit, who will the experienced person and in our organization that take this responsibility for internal audit. So the particular person should be quality manager. ये quality manager होते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर क्लिनिशियन भी हो सकते हैं जिन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो वो भी एक इंटरनल ऑडिट प्लान बना सकते हैं. In order to facilitate evaluation by different committees. इसमें हम different committees भी प्लान करते हैं इंटरनल ऑडिट के लिए. लाइक जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की कमेटी होती है, क्वालिटी कमेटी अलग होती है, डिपार्टमेंटल कमेटीज अलग होती हैं. सो एज पर द ऑडिट स्कोप हम अपनी कमेटीज को डिसाइड करते हैं कि किस कमेटी को किस तरीके से वर्क करना है.
Next is accreditation. After internal audit, we will go to the external audit. That is responsible for accreditation. हम accreditation कराते हैं किसी external auditors से. So that is the on-site survey. और वो जो audit होता है external auditors के through, वो एक on-site survey होता है by the team of physician, nurses and hospital administration. जो हमारे auditors आते हैं, external auditors NABH के, उसमें physicians भी होते हैं, nursing भी होती हैं, और कभी-कभी hospital administration की side से भी कोई particular person available होता है. So after accreditation, the team evaluates whether or not the hospital performance standards in number of area including patient safety and medical errors, pain management, medicine staffing, infection control, laboratory practices and hospital management. So these are the parameters. जो टीम हमारी आती है वो इन पैरामीटर्स पर वर्क करती है कि जो हमने इंटरनल ऑडिट किया है या जो हमारा स्कोप है वो पर्टिकुलर पेशेंट सेफ्टी को सेफ्टी के लिए जो हमने अपनी एक स्कोप गाइडलाइंस तैयार की है उनको प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है. मेडिकल एरर हमें चेक करना है, पेन मैनेजमेंट हमें चेक करना है, अपने स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें चेक करनी है, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल, दैट इज द 60% ऑफ एक्रेडिटेशन पार्ट. इन्फेक्शन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो ये 60% कवर करता है NABH को. Laboratory practices and hospital management. So all parameters will be go through by the external auditors and will help in our accreditation. Then role of clinician का क्या रोल होता है? Will help in our neonatal for removing nosocomial infection. होता है कि पेशेंट कौन सा इन्फेक्शन लेकर आया है और क्या हमें उसे क्या मेडिकेशन देना है, क्या एरर है. सो क्लिनिशियंस भी हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में और एक एक्रेडिटेशन पार्ट में बहुत हेल्प करते हैं. QCI involves top management and all level. QCI एक ऐसा डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट, that will not work, that will not move बिना टॉप मैनेजमेंट एंड बिना क्लिनिशियंस के वो वर्क नहीं कर सकता. सो टॉप मैनेजमेंट एंड क्लिनिशियंस को हमें एवरी लेवल पर इन्वॉल्व करना जरूरी होता है. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी क्या है वो हमने समझ लिया, QCI हमें समझ में आ गया. नाउ क्वालिटी इम्प्रूव करता है. इट वर्क्स ऑन द PDCA साइकिल, दैट इज plan, do, check and act. First, we need to plan what we require to check, what we require to do, and what are in our scopes. So, as our scopes, we will plan policies, procedures, committees, indicators, and target rate. We will discuss further. मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगी, but this is a summary जो हमें क्वालिटी के लिए प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए. प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किस पर वर्क कर रहे हैं. क्वालिटी में वी विल वर्क ओनली ऑन प्लान, दैट इज आई टोल्ड यू. आफ्टर प्लान वी विल डू ऑन दिस प्लान. मतलब हम उस साइकिल पे, हम उन पॉलिसीज पर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं. सो वी विल वर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान. इम्प्लीमेंट हमें क्या करना है वो हमें देखना है. इन पॉलिसीज, इन प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें किस पर्टिकुलर स्टाफ को एजुकेट करना है, किन्हें ट्रेन करना है, मॉनिटर करना है उस चीज को और प्रॉब्लम्स को आना है. देन आफ्टर डन दिस वर्क वी विल चेक दैट हमने जो प्लान किया है, जो हमने वर्क किया है वो प्रॉपरली स्टाफ के थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लोग उस चीज पर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो वी विल वर्क, वी विल चेक द प्रोसेस, वी विल चेक द प्रोसीजर, वी विल चेक द सर्वे, वी विल सर्वेलेंस, collect and analyze the data. After checking, we will act. We will act as use results. जब हमने ये प्लान, डू, चेक, हम ये सब कर चुके हैं, आफ्टर दैट वी विल एक्ट ऑन द रिजल्ट. हमें उसको एनालाइज करना है, हमें देखना है कि किस तरीके से जो हम जितना वर्क हमने किया है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है और उसमें हमें आगे फर्दर इम्प्रूव करने की क्या जरूरत है.
So this is the basic of quality improvement: plan, do, check and act. Now let's start with plan. Organizing information for planning. किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एक ऑडिट प्लान करने के लिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन इज द बेसिक फॉर चेंजेस. इन अदर वर्ड्स, चेंजिंग इन अ सिस्टम इंफॉर्मेशन. उसके लिए एक इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी. वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? डिपार्टमेंट से. मे बी दिस इंफॉर्मेशन इज रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, और मे बी इट्स क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सकता है. ये पेशेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, या हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन. कोई भी ऑडिट प्लान करने से पहले वी शुड नो आवर टारगेट. फॉर दिस टारगेट वी नो द particular area, we know the particular problem, and we will collect the data from these particular departments. So this is the opportunity for planning. And now looking for objectives for improvement. हम कैसे improve करेंगे? Objectives हमारे क्या क्या होते हैं? Brainstorming sessions, reviewing existing policies, identifying the quality of current reason for changes. बेस हमें सेशन पता होगा. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मींस जो हम जिस पर हम पर्टिकुलर वर्क करेंगे और जो हमें उनको सिखाना है, वो एक सेशन हमारा प्रॉपर क्लियर होना चाहिए. मे बी अपनी जो पॉलिसीज है उन्हें रिव्यू करना होगा आफ्टर प्लानिंग और आफ्टर डूइंग दिस एक्ट. आइडेंटिफाई ये क्वालिटी के लिए करंट केयर, जो अभी पर्टिकुलर केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हम उसकी क्वालिटी हमें आइडेंटिफाई करनी होगी और उसको आइडेंटिफाई करना होगा. आइडेंटिफाइंग द रीजन ऑफ चेंजेस, हम क्यों चेंज कर रहे हैं, ये रीजन हमारा प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए. बिकॉज व्हेन वी विल change any policy or any protocol, we will take approval from NABH also. तो जब हम वहां पे वो चीज बताते हैं तो हमें ये भी बताना होता है कि हमने क्यों किया. उसकी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए कि हमने किस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ये एक्शन लिया. So after looking for improvement, we will come to the data collection from medical information system, data collection, personal and medical records, medical information protocols, what following in our the hospital for patient care. Data collection personal, that may be patient data or that may be staff data, that comes from the HR. And medical record, जो पेशेंट का हम MRD से रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं, that is the medical record. So that is that data will be collect for the particular scope. After collecting data, we will organize this in information as per our uses. So this may be in a flow chart. हम एक flow chart भी develop कर सकते हैं कि हमें किस कहाँ शुरू करना है, responsibilities कहाँ divide करनी है, then किस point पर हमें work करना है. हम flow chart को follow कर सकते हैं. We will follow fish bone diagram. We can follow force field analysis. In this, we will force a particular area or particular subject, but वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा force लगाना होता है कि उसके लिए ना तो environment ready होता है और ना ही हमारा staff ready होता है, और हमें उस department को बहुत ज़्यादा force करना है उस change के लिए. तो force field analysis, matrix diagram, एक matrix diagram भी develop कर सकते हैं. मतलब these are the proper basic concepts. Now this is all about plan. कि हम किस तरीके से प्लान कर रहे हैं. प्लान करने के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. बेसिक थिंग इज डेटा. देन आफ्टर प्लानिंग वी विल कम टू डू. हम उस प्लान को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं.
in do organizing quality. Now, to incorporate quality, one needs to measure clinical care actions and these conform to set standards. के लिए हमें ये चीज देखना होगा कि वो किस तरीके से हम क्लिनिकली उसको अपने एक्शन में ला सकते हैं. हमने जो भी प्लान किया है, जो पॉलिसीज सकते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेन पार्ट. सो उसके लिए हमें ये प्रॉपरली क्लियर होंगे. सो इन गाइडलाइंस, दैट गाइडलाइंस मे बी सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक, तो मतलब दैट ये हमें अपने पेशेंट केयर और पेशेंट डिवाइस के अकॉर्डिंग हम उसको prepare करेंगे. Indicators, the major elements for practice performance could be outcome indicator, structure indicator, and process indicator. Outcome indicators, that is morbidity and morbidity, health status, health related quality of life and patient satisfaction. आउटकम इंडिकेटर्स में हमारे ये सब आ जाते हैं कि पेशेंट कितना सेटिस्फाइड है, मींस जो हमें हमारी क्वालिटी से क्या क्या पहले जो हम क्वालिटी प्रोवाइड करते थे उससे हमें क्या क्या आउटकम्स मिले हैं, दैट इज मेनली आउटकम इंडिकेटर. आते हैं पेशेंट स्टेटस. पेशेंट का हेल्थ स्टेटस, जब एडमिट हुआ है तो क्या था, और उसके बाद जब वो यहाँ से डिस्चार्ज हुआ है तब उसका स्टेटस क्या था, दैट इज द पर्टिकुलर इंडिकेटर एंड पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन. रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन, हम हमारे सेटिस्फेक्शन, हमारी क्वालिटी से कितना सेटिस्फाइड है पेशेंट, दैट इज द दैट इन द आउटकम इंडिकेटर. स्ट्रक्चर इंडिकेटर्स, इन स्ट्रक्चर इंडिकेटर्स पर फाइनेंशियल एंड अपॉइंटमेंट्स. फाइनेंशियली हम पेशेंट से कितना चार्ज कर रहे हैं, पर्सनली हम पेशेंट्स को कितना एंटरटेन कर रहे हैं, एंड उसके अपॉइंटमेंट में कितना टाइम लग रहा है, मीन्स वो उसे जो भी हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसे टाइम टू टाइम मिल रही है नहीं. जो हम इंडिकेटर्स क्वालिटी में चेक करते हैं एक टाइम मेजर करने का कि हमें पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट कम्स इन द स्ट्रक्चर इंडिकेटर. प्रोसेस इंडिकेटर, डायग्नोसिस, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट एंड रिलीजिंग. जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस है वो सारा आ जाता है प्रोसेस इंडिकेटर में. नाउ क्वालिटी इंडिकेटर. क्वालिटी इंडिकेटर्स मे बी सिस्टमैटिकली, नॉन सिस्टमैटिकली, एंड सो क्वालिटी इंडिकेटर्स हम सभी फॉलो करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के. दीज indicators basically developed for the patient care and support services actions. जो भी इंडिकेटर डेवलप करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बेसिकली हमारे जो कनेक्ट होते हैं वो पेशेंट सर्विस से होते हैं कि हमने पेशेंट को जो सर्विस प्रोवाइड की है उसका हमारा आउटकम क्या आ रहा है. सो क्वालिटी इंडिकेटर्स इज नथिंग जस्ट फॉर द चेकिंग ऑफ आवर क्वालिटी. हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन हम इन्फेक्शन कंट्रोल में जितनी आप आईसीएन से आप सभी फॉलो करते हैं. हैंड हाइजीन में जितनी परफॉर्मेंस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स, दैट इज प्रोवाइडर्स परफॉर्म हैंड हाइजीन परफॉर्म किए अपॉन दैट वी आर यूजिंग फॉर हैंड हाइजीन. यूजेस, प्रोफिलैक्सिस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड की है कम की है और उसकी डोज प्रोवाइड की है अपॉन the total number of surgical infections. यहाँ पर प्रोफिलैक्सिस की रिक्वायरमेंट है. टोटल नंबर ऑफ डेट इन्फेक्शन, दैट इज द न्यूमिनेटर. सो पेशेंट्स थे, सर्जरी थे जिनको हमें प्रोफिलैक्सिस देने की जरूरत थी. थर्ड इज इंडिकेटर फॉर इंफेक्शन कंट्रोल. द इन्फेक्शन बाय साइट, वार्ड और डिवाइस. जो हमारे नोजोक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं, दैट इज बेसिकली दैट इंडिकेटर. यूटीआई, वैप, मैंने सबको एक साथ कंबाइन करके लिखा है. सो जो इन्फेक्शन है अपॉन द टोटल डिवाइस डेज, पेशेंट को वो डिवाइस कितने दिन तक लगाई गई है,
that indicator we are using for hospital acquired infection. Outbreak warning. आउटब्रेक वार्निंग इज बेसिकली जो एक हमारा पॉइंट है कि हमारा कुछ आउटब्रेक तो नहीं हुआ है आईसीयूज में या किसी पर्टिकुलर वार्ड में बिकॉज ऑफ द एनी पर्टिकुलर बैक्टीरिया और बिकॉज ऑफ द एनी पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म लाइक हमारे आईसीयूज में 5 पेशेंट्स को क्लैप्सिला डेवलप हुआ है, बट वो क्लैप्सिला डिफरेंट टाइप ऑफ क्लैप्सिलाज है या फिर वो सेम क्लैप्सिला की कॉलोनाइजेशन हुई is developed by the same species or same strain of Klebsiella, वो हमारा एक आउटब्रेक हो जाता है कि हम ये हमारे आईसीयू से ही ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है. सो दैट इज द कॉलोनाइजेशन ऑफ अपॉन द पेशेंट डेज, मतलब पेशेंट के स्टे कितने दिन का रहा है और पेशेंट्स के डिवाइस डेज क्या रहे हैं, दैट इज अपॉन द न्यूमिनेटर. दीज आर द बेसिक इंडिकेटर्स व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर for HI. Then after that we will review the criteria. इन indicators को perform करते हैं. Indicators हम इनको summarize करते हैं, इनका particular एक presentation बना के अपनी मीट करते हैं और उसका एक outcome निकालते हैं. So that outcome criteria. So after seeing these indicators, we will review our criteria and set the standard. हमने एक क्राइटेरिया रिव्यू किया जो प्रीवियस हम यूज कर रहे थे, उसके बाद हम अपना स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड मैच हो रहा है, जो हमारा प्रीवियस स्टैंडर्ड था दैट इज परफेक्टली ओके और नॉट. देन वी विल टारगेट द स्टैंडर्ड. अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो हमें उस स्टैंडर्ड को पर्टिकुलर उस एरिया के उसी पर्टिकुलर क्वालिटी इंडिकेटर को हमें टारगेट करना है, उस स्टैंडर्ड को टारगेट करना है, एंड देन वी विल अचीव दैट. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग. प्लान, डू, चेक, एक्ट. मैंने बता दिया डू में हमें ये सारा प्रोसेस करना है कि हमें अपने क्वालिटी इंडिकेटर्स पर वर्क करना है, और देन आफ्टर वर्किंग we will review the criteria, we will check our standards, we will target the standard, and then we will achieve the standard. जब पॉलिसीज प्रिपेयर हो गई, वो इम्प्लीमेंट हो गई, तो हम उस प्रोसेस को, उस प्रोटोकॉल को चेक करना है सर्वेलेंस के थ्रू. नाउ इसमें क्वालिटी टीम एंड इंफेक्शन कंट्रोल की तरफ से आईसीएम का रोल आ जाता है कि अब यहाँ पर जो चेकिंग का काम हो रहा है वो हमारी टीम के थ्रू हो रहा है, जहां पर प्रॉपर डेटा कलेक्ट होगा, सर्वेलेंस होगा और उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा. सो इन चेक सर्वेलेंस, once CQI is implemented, ongoing surveillance provide the data which we are it's effective or not. Effectiveness, उसकी efficiency को check करना है. Process surveillance is a vital comment. जो सर्वेलेंस हो रहा है वो एक ऑडिट, जो ऑडिट कर रहे हैं वो किस क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है. स्ट्रक्चर, जो डिपार्टमेंट है उसकी स्ट्रक्चर पर भी बेस्ड हो सकता है. प्रोसेस क्राइटेरिया, आउटकम, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑन विच वी आर बेसिकली डूइंग अवर audit from our quality department. Structure criteria, we will look for the administration, we will look for the clinicians, we will look for our team जो हमने वहां पर एक ऑर्गेनाइज की है. बेसिकली these points are depend on our पर्टिकुलर पर्सन ऑल्सो. सो ये हम जो शीट बनाते हैं उसमें आपने देखा होगा कि ऑडिट शीट जो होती है उसमें कुछ नंबर्स डिवाइड होते हैं, लाइक 10, 5 and 0. 10 is for you have policies and you are working on these policies. You have policies and you are not working, or sometimes you are working on these policies but you don't have these policies. So this is then we will collect the number 5, and 0 means आपके पास ना पॉलिसी है और ना ही उस पर वर्क कर रहे हैं.
प्रोसेस स्ट्रक्चर एक प्लान किया है, उस पर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखते हैं उसमें। क्राइटेरिया मींस जो हमने उन्हें पॉलिसीज प्रोवाइड की है या जो सर्वेलेंस हम उन्हें उनसे चाह रहे हैं, वो उस पर उस प्रोसेस पर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आउटकम क्राइटेरिया, प्रोसेस पर वर्क करने के बाद में आउटकम प्रॉपरली उसका आउटकम है भी, या वो ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। टोटल क्रेडिट पॉइंट्स, वी आर वर्किंग ऑन दीज 3 क्राइटेरिया एंड यहाँ हमने पूरा अपना जितना भी चेक करके जितना डेटा कलेक्ट किया था उसको हमने पॉइंट्स में कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज किया, देन डिस्कस्ड इन आवर कमिटी। आफ्टर यूज दिस डेटा फॉर चेंजेस, कि अब हमें चेंज क्या करना है, हमने इतना वर्क तो किया बट इस गिव दिस वर्क इज सफिशिएंट और नॉट, और इस वर्क के लिए हमें अपने सिस्टम में चेंजेस क्या करने हैं, दैट कम्स इन द एक्ट। कम्युनिकेशंस, डिस्कशंस एंड मोटिवेशंस, दिस इज द बेसिक पार्ट। सो जब हम चेंज करते हैं तो हमें कम्युनिकेट करना होगा अपनी कमेटी में, अपने डिपार्टमेंटल मेंबर्स के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में हमें डिस्कस करना होगा दैट जो हम नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, दैट नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, दैट शुड बी डिस्कस्ड विद अवर एवरी responsible person। डिस्कस करना होगा that these persons have any other plan or they can work on any other guidelines also। उन्हें मोटिवेट करना होगा, मोटिवेशन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मोटिवेट करना होगा उस प्लान, उस जो हमने अब नेक्स्ट प्लान किया है उसके ऊपर वर्क करने के लिए। एजुकेशन, स्टाफ एजुकेशन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड CQI। स्टाफ को अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एजुकेट करना होगा कि वो उसको प्रॉपरली किस तरीके से फॉलो करेंगे और उन्हें हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्वालिटी टीम जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस, जो चेंजेस हमने किए हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो हमें देखना है। एंड आफ्टर डूइंग दिस जॉब वी विल प्लान अ सेकंड ऑडिट। अगर हम सेकंड ऑडिट नहीं प्लान करेंगे, हम नहीं देखेंगे कि हमने किया क्या, तो हम एक सेकंड किस तरीके से क्या डेवलप हुआ और जो हमने प्लान किया, जिस पर्टिकुलर स्कोप पर हमने वर्क किया उसमें सेकंड थॉट क्या है, सेकंड इम्प्लीमेंट क्या है और हम किस स्टेज पे पहुंचे। तो दैट विल कम इन द सेकंड ऑडिट। दिस इज ऑल PDCA। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। यस मैम। क्लियर हुआ ये PDCA प्लान? यस मैम। इसमें किसी को डाउट है? नो। No. Okay. Then come to the questions. Which of the following is priority for preventing infections when providing patient care? Hand hygiene, wearing gloves, using a barrier between client functions and nursing bags, and wearing gown and goggles. Hand washing. Hand washing. Hand washing. Factors interfering the nosocomial infections are microbial agent, environmental factors, and all of above. All the above. Ma'am, environmental Yes, factor. obviously all of above because सभी सारे factors. Responsible मैम। What are the preventive measures for CLBSI? Sorry. Prolonged use of the catheter. Prolonged use of catheter, managing high level of aseptic techniques, A and B. A and B. A and B. Right, A and B. A and B. Now what is ISQUA? Quality indicator. Indian Society for Quality in Health Management, International Standards, International Society and International
standards for quality health. Internal standard of B. Internal standards of quality in B, healthcare. ma'am, B. No, it's C. International Society of Quality in Healthcare. International Society. ISQUA is a proper committee. You can check this on Google. It's as WHO. जैसे WHO है वैसे ही ISQUA है. Okay. Quality is healthcare enable. Patient recovery of data, high stress to the hospital, increase the expense and happiness is the key. Fast recovery of the patient. Sorry? Increase in expenditure. No, that is first. Faster recovery of patient. Faster recovery. Obviously, quality हम basically जो जितना कुछ कर रहे हैं, जितना implement कर रहे हैं, वो सब कर तो सिर्फ patient की quality के लिए रहे हैं ना. So quality is faster recovery of patient. Continuous quality improvement is possible. Engage the staff. Right, engage the staff. Thank you, ma'am. So this is all about CQI. Now, if you have any doubt, you So much, Megha. I think सब बच्चों के doubts वगैरह सब clear हो गए होंगे. I'm very sure about that. Right. So thank you so much, everyone, for joining in, and thank you so much, Megha, that you took out time Thank you, ma'am. to cover webinar.